So according to the law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reactant. Now what is the active masses of the reactant means molarity, and it is raised to the stoichiometric coefficient means the coefficient given in the reaction means number of moles given in the reaction. If I have to find the rate of the reaction according to this concept, this is A raised to the power A and B raised to the power B. Okay, and here is the constant, that is K, that is rate constant. Okay, so according to law of mass action, and if you remember, we have done in class +1 finding the equilibrium constant. What is law of mass action? So it is directly proportional to the active product of the active masses of the reactant which are taking part in the reaction. ठीक, raised to the, there you can write raise to the power equal to their stoichiometric coefficient. These are stoichiometric coefficient means number of moles taking part in the reaction. This is called law of mass action. Now what is the characteristics of rate constant? These rate constant, what are the various characteristics of this rate constant? ठीक बेटे, rate constant is the measure of reaction. What do you mean by rate constant is the measure of reaction? Means higher is the value of rate constant, higher will be the rate of reaction. ठीक है, तो K is the measure of the reaction. अगर K जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी रिएक्शन फास्ट चलेगी. ठीक, ओके. और K doesn't depend upon concentration of the reactant. concentration of the reactant पे नहीं डिपेंड करती, मगर हाँ कि एक रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स है. टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ K वेरी करती है. K इज द करेक्टरिस्टिक. ठीक, ऑफ a reaction means characteristic constant of a reaction. रिएक्शन जैसी रिएक्शन होगी K की वैल्यू वैसी होगी. ओके, और इट वेरीज विद टेम्परेचर, and if there is catalyst it will definitely be vary, and it varies with the order of reaction. We'll do the further what is order of reaction. K depend upon the order of reaction. Okay, so these are the various characteristics of the K which we have written the rate constant. It tells about the measure of the reaction means जितनी reactions चलेगी उतनी ज़रा K की वैल्यू बढ़ेगी. K reactant की concentration पे डिपेंड नहीं करती, मगर किसी भी reaction की characteristics है. अलग अलग रिएक्शन की अलग अलग K की वैल्यू होती है और टेम्परेचर के साथ ये वेरी करती है, और K ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट है जी. ठीक, ये हो गया बेटे लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन इसलिए दिया जाता है जो हम रिएक्शन लिखते हैं उसमें जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नज़र आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व्ड नज़र आ रहे हैं, दैट गिव्स अस लॉ ऑफ मास एक्शन. मगर एक्चुअली हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल है एंड लॉ ऑफ मास एक्शन इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट. ओके, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली जिसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है, रेट एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड करता है ये हमें बताता है. तो हमने अगर मेरे पास यही रिएक्शन मैं फिर से लूँ विच आई हैव टेकन बिफोर, एंड अगर अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड नाउ द एक्सप्रेशन जो आएगा उसे हम बोलेंगे दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन. रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें एक्चुअली बताती है भी रिएक्शन बेटे किसके ऊपर डिपेंड करती है. तो इसका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन देना हो तो विल गिव रेट is directly proportional to A raised to the power alpha
बी रेज टू द पावर बीटा। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि ये ए, अगर यहाँ पे 1 मोल हो तो यहाँ पे 1 ही हो, अगर यहाँ पे 2 मोल्स हो तो यहाँ पे भी 2 ही हो, मे बी यहाँ पे अगर 1 है ये 0 भी हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक, एक्चुअली में जिसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है वो हमें पता चलता है। ओके बेटे, सो अगर इसका मैं ऑर्डर लिखूं, फॉर दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड करी, इन दोनों के ऊपर, तो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो वी कैन से सम ऑफ द पावर, हमने क्या किया, सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हमें क्या देता है बेटे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन वैल्यू, ओके, एंड दिस ऑर्डर कैन बी 0, पॉजिटिव, मतलब 1, it may be 2, it may be 3, it may be fractional, any value. It can be negative also, ठीक है, any value it can have. इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी सिर्फ, जैसे अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन में लगाएं तो हमारी कभी भी रेट लॉ की 0 या फ्रैक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हम फ्रैक्शन में नहीं लेते ना, नंबर ऑफ मोल्स ये कोई रिएक्शन हो रही है तो 0 नहीं होंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेंट वैल्यू है कि एक्चुअली कितने मोल्स पे डिपेंड करती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हो आप, हमने क्या किया, सम ऐड किया, किसको किया, सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक, इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 कब होगी, देखो कुछ रिएक्शन है लाइट की प्रेजेंस में होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइट ही ना होगी तो जितना मर्जी आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो वो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो एक्चुअली वो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करी, एक्चुअली वो रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करी, लाइट की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द 0 ऑर्डर, लाइक if you are reacting hydrogen plus chlorine and HCl is forming, as the reaction is going in the presence of the light, reaction depend upon the light howsoever high concentration of hydrogen or chlorine you have taken. So it doesn't depend upon the hydrogen and chlorine, this is a secondary factor. To start the reaction what is the main factor is the light, light ही ना होगी तो हम क्या करेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। कुछ रिएक्शन कैटलिस्ट को की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में या कोई उनको सरफेस रिक्वायर्ड है उसकी प्रेजेंस में अगर वही चीज़ें ना दोगे तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइट, मगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन लोगे रिएक्शन हो ही जानी है। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर। नेक्स्ट इज बेटे फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती हैं जो कि 1, ओनली 1 रिएक्टेंट पे डिपेंड करती हैं, चाहे हमारी इक्वेशन में 2 मोल्स इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल जब हम N2O5 की ब्रेक डाउन करवाते हैं, वी यूज टू गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, देखने से ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है क्योंकि इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, मगर इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि जब इसके मैकेनिज्म में जाएंगे तो हमारा जो RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें N2O5 का 1 मोल है। अब बोलोगे RDS स्टेप क्या है, आगे हम मॉलिक्युलरिटी और उसमें एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टडी करेंगे। कोई भी रिएक्शन होती है बेटे उसमें एक ऐसा स्टेप आता है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक स्टेप में नहीं होती, दे आर इन द मल्टीपल स्टेप। इफ़ यू रिमेंबर जब हमने मार्कोनी-कॉफ रूल किया था तो हमने जब मैकेनिज्म के अंदर गए थे उसमें कार्बोकेटाइंस बने थे, तो कोई रिएक्शंस हैं पूरे मैकेनिज्म के साथ चलती हैं, तो एक ऐसा स्टेप होता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है। क्लास में टीचर की 100 बच्चों को पढ़ा रही है पर टीचर की स्पीड उस बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट करेगी जो स्लो लर्नर है, ठीक है, जिसको जल्दी से समझ नहीं आ रहा, वो बारी बारी पूछेगा इसका डाउट इस ये समझा दो।
तो स्पीड स्लो करेंगे। हमें पता है कि बच्चों सबको समझ आ रहा है, चलो जी हम फटाफट बोल दी जा रहे हैं, बट ऐसे एक बच्चा आएगा जो कहेगा नहीं मैम इस दोबारा समझाओ, तो आई विल स्लो डाउन माई स्पीड एंड अगेन अगेन एंड अगेन टेल यू दैट कंसेप्ट। तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करी? सिर्फ एक वो स्टूडेंट के ऊपर। इसका मतलब अगर हम किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फास्ट तो हो ही जाना है। स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जब इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, दे टेक इन मल्टीपल स्टेप्स एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज आरडीएस स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसको देख के जब इसके भी मैकेनिज्म में जाते हैं तो एक ऐसा स्टेप आता है जिसमें सिर्फ 1 मोल ऑफ N2O5 इन्वॉल्व होता है। तो जब वो स्टेप आता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, दैट इज वाई दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट इट सीम्स टू अस इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कोई रिएक्शन हमें सीम्स भी करती है, होती भी है ना। ये जरूरी नहीं है कि अगर हमें मोल्स दिए गए हो उतने ही रिएक्शन विल हैव दैट मच ऑर्डर ओनली। ये भी रिएक्शन है, लाइक H2 + I2 गिव 2I2 2HI। इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, 1 मोल ऑफ आयोडीन इन्वॉल्व है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर भी और आयोडीन के ऊपर भी। तो अगर इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखोगे ऊपर, जो अल्फा और बीटा के टर्म्स लिखोगे तो 1 और 1 हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 है ये भी 1 है। तो क्या हो जाएगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 1 इज 2। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, second order reaction. In the same way there are kind of third order reaction. For example, third, ठीक है, I have taken NO and reacting with oxygen and I am getting NO2. Okay bete, so this reaction actually depend upon NO2 O2 1, 2 + 1 is equal to 3. The order is 3. You will add on this coefficient as given in the Rate law expression. You will get order of the reaction. This is third order reaction. As there is third order reaction, there is also fractional order reaction. Fractional order, for example, this is a gas that is phosgene, which is formed by carbon monoxide and chlorine. The rate actually depend upon 2 moles of carbon monoxide and half mole of chlorine. Actually the reaction depend upon this. So the order of reaction is 5/2. So there are fractional order reaction also bete. Again I am saying order of the reaction is experimental determined when we will undergo the mechanism of the reaction. ठीक बेटे, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, वो हम आगे देखेंगे। उसके ऊपर तो ऑर्डर डायरेक्टली हम कहेंगे मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम रहता है। मगर जब हम एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करेंगे तो हम हर एक स्टेप की मॉलिकुलरिटी डिटरमाइन करते हैं और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्डर विल डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। Got the point? Any doubt till this? Any doubt with it till this? Okay. So very important now बेटे units of K. K के क्या units होते हैं? Rate constant के क्या units होते हैं? Let us see. And directly 1 marks का question units पे ही आ जाता है. Units of K.
very 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 important. Again this concept is, so you know, rate of reaction for the zero order first. अब it doesn't depend upon the concentration, that is why I have written a power to 0, क्योंकि concentration पे डिपेंड करती नहीं है, जीरो ऑर्डर लाइट पे डिपेंड करती है. ओके बेटे, तो इस केस में अगर हम यूनिट्स निकालने लगेंगे तो हम क्या बोलेंगे, के की निकालने, तो के विल बी इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड के रेट ओवर ए नॉट. ठीक है, यही करोगे. अब ए तो ज़ीरो है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. रेट क्या है, रेट अगर हमें पुराना याद हो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स अपॉन डी टी. रेट इज डी एक्स अपॉन डी टी. डी एक्स क्या था, मोल पर लीटर, डी टी सेकेंड. सो सेकेंड हो जाएगा, तो यूनिट जीरो ऑर्डर के क्या हो जाएंगे, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स. ओके बेटे, इन द सेम वे फर्स्ट ऑर्डर, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, सो रेट विल बी now dependent upon raised to the power 1, raised to the power 1. So k will be is equal to rate a raised to the power 1. okay, so rate will be, we know d upon dt, तो यहाँ पे भी a है, ऊपर भी a है, तो इस a से कैंसल आउट हो गया, नीचे क्या रह गया अब, dt. dt के क्या हो जाएंगे, सेकेंड. तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर के सेकेंड इनवर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो आपको क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखो, यू हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज, फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इतना. आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल, 3 into 10 raised to the power minus second inverse. You are given with the value of rate constant इतना बेटे, and they are asking you to find the order of the reaction. अब बच्चे कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं के की वैल्यू. यूनिट्स आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता रहे हैं. यूनिट्स अगर सेकेंड इनवर्स है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है बेटे. यू हैव टू जस्ट सी द यूनिट्स इन दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन. अगर यूनिट मोल पर लीटर पर इनवर्स दिया हो, इसके साथ कोई भी आपको क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन्ड हो, यू विल जस्ट सी द यूनिट. अगर के की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद आपने ऑर्डर निकालना है. ओके, इन द सेम वे यू विल फाइंड सेकेंड ऑर्डर, इन द सेम वे यू विल फाइंड थर्ड ऑर्डर. ओके, कैसे, सेकेंड ऑर्डर का ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑर्डर का ए क्यूब हो जाएगा. एंड दिस इज योर होमवर्क. एंड इन जनरल, अगर हमारे पास टाइम नहीं है एग्जाम में, तो इन जनरल विच equation we use to find the order of reaction, remember in general how you will use it. So you know k is equal to d, any dA या dA upon dt. okay, sorry, r is equal to dA upon dt. गेटिंग माई पॉइंट, इट इज इक्वल टू दिस. फॉर अगर आपका के और आर किसके इक्वल है, दिस आर इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एन, कोई भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है. अब ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन. तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. okay, into 1 upon concentration raised to the power n. By solving it you will get k is equal to concentration 1 minus n into time inverse. मीन्स अगर आपने इसमें बेटे वैल्यू डाली तो आपको
के की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू क्या होगी बेटे 1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0। टाइम क्या होता है सेकेंड इनवर्स, तो इसका सेकेंड इनवर्स आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यू विल पुट जीरो हियर। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटे मोल पर लीटर, तो योर यूनिट्स विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। मान लो आपका सेकेंड ऑर्डर है तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, यू विल पुट 2 हियर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा -1, तो मीन्स मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। So for the second order it is mole -1 liter second inverse, and for the third order mole -2 liter square second inverse. Putting the value of 1 again and again, n की वैल्यू 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, एज ए ऑर्डर ऑफ के की वैल्यू आ जाती है आपकी। ओके बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, 1 marks order of the reaction and the units. Now come next concept bete, molecularity, which I will saying कि molecularity and what is the molecularity in the elementary state and the complex state. Let us see. So, to understand the molecularity, first you must understand two type of the reaction. Okay, the first type of the reaction is bete elementary reaction. And next type of the reaction is complex reaction. Now what do you understand by the elementary reaction? The reaction which take place in the single step. Which take place in the single step, it is called elementary reaction. The reaction which take place in two or more steps, it is called a complex reaction. Okay, जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के डिफरेंट स्टेप स्टडी कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है उस रिएक्शन का मैकेनिज्म. नाउ व्हाट इज मॉलिक्युलैरिटी? मॉलिक्युलैरिटी एक सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन की इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज जो एक स्टेप में हो. फॉर एग्जांपल अगर PCl5 बेटे इट इज ब्रेकिंग डाउन into PCl2 plus Cl2, तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है 1, जो हमें सिंगल स्टेप में नजर आ रही है. द रिएक्शन विच इज अकरिंग इन द सिंगल स्टेप उसकी मॉलिक्युलैरिटी 1 ही है. जो रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में चल रही है तो हम डिफरेंट स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी लेंगे. ठीक है, the molecularity of the reaction is the number of the reacting species taking in a single step. अगर 2 और more steps में हो रही है तो फर्स्ट स्टेप में कितनी है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है, फोर्थ में कितनी है, अलग अलग स्टेप की लेंगे. ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द molecularity is it is the only theoretical complex. Order of the reaction is a practical complex. It is very important point to write down bete. It is only a theoretical concept. Okay, this is only a theoretical concept. Second, like order we have done, order can be 1, 2 fractional and all, मगर जो हमारी मॉलिक्युलैरिटी है कभी भी जीरो नहीं हो सकती. नो जीरो, नो फ्रैक्शनल, ओके, नो इमेजिनरी. हमारी जो गिवन होगी किसी भी स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं वो ही हमारी मॉलिक्युलैरिटी होगी.
ऑर्डर हमारा कुछ भी हो सकता था, मगर मोलिकुलैरिटी हमारी वही होगी जो हमें नजर आ रही है। ठीक, मोलिकुलैरिटी इज रेयरली मोर देन 3, रेयरली मोर देन 3। क्यों? क्योंकि जब एक रिएक्शन हो रही होती है बेटे एट ए टाइम, 3 से ज़्यादा जो कोलाइडिंग स्पीशीज कान कोलाइड, 3 मोर देन 3 कोलिजन से ज़्यादा कोलिजन नहीं हो सकती। ठीक है, सो देयर आर 2 फैक्टर वी विल डू फर्दर in Arrhenius concept. This is collision frequency and second is orientation. तो at a time 3 से ज़्यादा collisions नहीं हो सकती, तो molecularity at a time 3 से ज़्यादा rarely कभी होती है। Okay, molecularity of complex reaction can be known only by mechanism. If we are knowing the mechanism, then we are knowing about the molecularity. सिंगल स्टेप में हमें तो 7 नज़र आएगी, 8 भी नज़र आ सकती है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। मगर जब हम मैकेनिज्म में जाते हैं तब हमें डिफरेंट स्टेप नज़र आते हैं, तब हमें मोलिकुलैरिटी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ बेटे एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि वो सिंगल स्टेप में हो रही होती है, नो इंटरमीडिएट इज देयर, नो इंटरमीडिएट इज देयर। कार्बोकेटाइन एनाइन पढ़े थे ना हमने, वो इंटरमीडिएट थे। तो जो हो ही सिंगल स्टेप में रही है उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। और जो कॉम्प्लेक्स है बेटे, इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन there is an intermediate, it can be more than one also. Okay, ठीक है बेटे। तो मोलिकुलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ऑर्डर में जैसे हमें देखने से H2+Cl2 की HCl, तो हमें उसका जो मोलिकुलैरिटी है वो 2 नज़र आ रही है, मगर एक्चुअली द ऑर्डर इज 0। तो मगर मोलिकुलैरिटी 0 नहीं हो सकती। ओके, मोलिकुलैरिटी कभी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एट ए टाइम 3 एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी स्पीशीज कोलाइड हो रही हैं वो 3 से ज़्यादा कोलिजन, उनकी ओरिएंटेशन फैक्टर ही नहीं होगा कि वो कोलाइड कर सकेंगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी निकालनी हो तो हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, और एलिमेंट्री क्योंकि उसमें होता ही नहीं मैकेनिज्म, सो नो इंटरमीडिएट। इन द कॉम्प्लेक्स देयर इज इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ओके बेटे, गॉट द पॉइंट? एनी डाउट? नाउ दिस इज योर होमवर्क to do the difference between molecularity and order of the reaction. It is again asked to make the paper simple for 2 marks. 2 marks. So many points are written about it and you can compare it with the order of the reaction. Okay? It is telling us the number of the reacting species. That was the sum of the concentration termed involved in rate law expression. It is, we have written here is theoretical concept, that we have studied experimental concept. ठीक है, it is applicable to one step reaction only, step by step study करते हैं। It is order तो elementary as well as complex रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल हम देख सकते हैं। ये 0 फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, वो 0 फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है। ओके, तो अब बहुत ज़्यादा कुछ। मोलिकुलैरिटी इज इनवेरिएबल, मीन्स इनवेरिएबल्स मतलब इट डजंट टेम्परेचर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल द कंडीशन। मगर ऑर्डर हमने स्टडी किया, उसका रेट कांस्टेंट हमने स्टडी किया। इट डिपेंड, लाइट के ऊपर भी डिपेंड करेगी, प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर कितना अप्लाई कर रहे हो। जैसे चेंजेस लेके आओगे वैसे आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी चेंज होगी। ओके बेटे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी चेंज होगी। ठीक, तो हम किसी का भी मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ आता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको N2O5 की दी थी, आई विल टेक दैट एग्जाम्पल ओनली विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म।
reaction is going up. So अगर मैं मैकेनिज्म एक स्टडी करवाऊँ आपको, जो हमने N2O5 की ब्रेक डाउन करी थी, फिर रिमेंबर, तो हमने N2O5 की ब्रेक डाउन में 2 मोल्स लिए थे, तो हमें NO2 प्लस ऑक्सीजन मिली थी। तो देखने से हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लग रही थी, मगर हमने इसको कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। 2 स्टेप, फर्स्ट में N2O5 बेटे ब्रेक डाउन करता है NO2 में और गिविंग यू NO3, और ये जो रिएक्शन है वो RDS स्टेप है, दैट इज स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये होगा तो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर ये होगा तो नेक्स्ट स्टेप होगा और हमें ये मिलेगा। अगर ये ही नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये स्टेप होता है फास्ट। अब ऑर्डर इस स्टेप पे नहीं डिपेंड करता, ऑर्डर स्लो स्टेप पे ही डिपेंड करता है। ऑर्डर हमेशा स्लो स्टेप पे ही डिपेंड करता है। तो स्लो स्टेप में हम देख रहे हैं सिर्फ एक N2O5 इन्वॉल्व है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। ठीक बेटे, इन केस ऑफ, और जो मॉलिकुलैरिटी आप सारे स्टेप भी देखोगे तो इस स्टेप की कितनी है 1, इस स्टेप की कितनी है 2, दिस इज मॉलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। बट order of the reaction will be 1, which depend upon the rate determining step, which is a slow step, which will determine the rate of the reaction, कि reaction अकर होगी या नहीं होगी। एक बार स्लो स्टेप हो जाए, फास्ट को तो कोई टाइम ही नहीं लगना, उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, फास्ट तो अपने आप हो ही जाना है अगर एक बार स्लो हो गया तो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट बेटे? सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमें देता है देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास रेज टू द पावर देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दिस इज गिविंग अस ओनली अ थ्योरेटिकल आइडिया अगेन। फिर हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन किया, उसमें विच यू हैव रेज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म विद अल्फा एंड बीटा, that will actually gives you the order of the reaction. Order of the reaction can be 0, 1, 2, 3 or even fractional. The unit of the order of the reaction is too much important. यूनिट्स के बेस में बहुत एग्जांपल आते हैं, के की वैल्यू के यूनिट्स आपको आने चाहिए, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। देन वी हैव डन मॉलिकुलैरिटी। ठीक, explaining the concept of molecularity we have done, there are 2 type of the reaction, one is all elementary and one is complex. Elementary occurs in 1 step and complex more than 1 step, and slow step determine the order of the reaction, and molecularity is determined by the single step.